کے لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں متحدہ اپوزیشن اور ایم کیو ایم کی مشترکہ نیوز کانفرنس کا آغاز۔ قومی قیادت کو گزرنا ہے۔ آج کا دن دعاؤں کا دن بھی ہے کہ اللہ ہمیں اس قابل کرے کہ قومی قیادت اور پاکستان کے ایوان عام پاکستانیوں کی خواہشات کا آئینہ دار نظر آئیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس دفعہ ہم دعووں سے زیادہ، وعدوں سے زیادہ ایسے ارادے اپنے پاس رکھیں، ایک ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانیوں کی دہلیز تک پہنچانے کو ممکن بنایا جا سکے۔ ہم بھی انہی امیدوں کے ساتھ آپ کے ساتھ شریک سفر ہوئے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے اس مرحلے پہ کہ ہم نے آپ کے ساتھ جو چلنے کا فیصلہ کیا ہے، معاہدے اور ارادے کیے ہیں، ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کی ہے، اس میں ہم میں سے کسی کا کوئی ذاتی بلکہ جماعتی مفاد بھی شامل نہیں ہے۔ ہمارے معاہدے کی اور ہمارے مطالبے کی ایک شق پاکستان کی عام عوام کے لیے، اور خاص طور پر وہ علاقے کی جن کی نمائندگی گزشتہ 35 سال سے ہم کر رہے ہیں، وہ علاقے کے جو ان 35-50 سالوں میں خصوصی توجہ کے مستحق ہے، جن کے لیے اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخ رو کرے کہ ہم نے اپنے تمام سیاسی مفادات پر پاکستان کے مفادات کو ترجیح دی ہے، اور میں امید کرتا ہوں اور میں آپ سب سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ آج کے دن ہم ایک ایسے دور کا آغاز کریں جہاں پہ سیاسی اختلافات کو دشمنی نہ سمجھا جائے، سیاسی انتقام کا کوئی سلسلہ جاری نہ رکھا جائے، تہذیب کی زبان، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ماحول ہم پاکستان کی سیاست کو، جمہوریت کو اور پاکستان کو دے سکیں۔ میں اس موقع پہ آپ سب کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں پاکستان میں اپوزیشن کے قائد جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب سے یہ بات کریں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام اپنے صحافی دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جناب خالد محمود صدیق صاحب، جناب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب خالد مکشی صاحب، جناب سردار اختر مینگل صاحب، اور میرے دوسرے اسلم بھوتانی صاحب، جناب خواجہ صاحب رفیق صاحب، جناب احسن اقبال صاحب، جناب عامر خان صاحب، اور میرے تمام دیگر قائدین، السلام علیکم۔ آج پاکستان کی تاریخ میں یقیناً یہ ایک بہت اہم دن ہے، وہ اس حوالے سے کہ شاید دہائیوں میں ایک متحدہ اپوزیشن، جس کو میں حضرت کے جو وہاں پر کلچر اس کے حوالے سے کہوں کہ متحدہ یہ جرگہ، جو قومی جرگہ جو اپوزیشن کا ہے، وہ مل بیٹھا ہے، اور اس کے لیے اس اتحاد اور اس قومی یکجہتی کے لیے جتنی کاوشیں کی گئی ہیں، اس کی جتنی بھی تحسین کی جائے وہ کم ہے۔ اس حوالے سے میں اپنے ایم کیو ایم کے اپنے دوستوں اور ساتھیوں اور ان کے ورکروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے انہوں نے ان کی خواہشات کو سامنے رکھ کر اس اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ اور میں اس میں جناب آصف علی زرداری صاحب اور جناب بلاول بھٹو صاحب کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں
کہ انہوں نے ان تمام مذاکرات میں اور ان تمام مشاورت کے اس عمل میں انہوں نے ایک کھلے دل کے ساتھ، جس طرح خالد صدیقی صاحب ان کے ساتھیوں نے ذہن کے ساتھ ماضی کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک نئے سفر کا آغاز کیا ہے. اور وہ سفر کیا ہے؟ وہ پاکستان کی ترقی، وہ پاکستان کی خوشحالی، وہ سندھ کی ترقی، وہ سندھ کی خوشحالی، وہ کراچی کی ترقی، وہ کراچی کو خوشحالی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی اہم متحدہ اپوزیشن اور ایم کیو ایم اس وقت مشترکہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہیں، ان کے برابر میں بلاول بھٹو زرداری ہیں، دوسری جانب شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان ہیں. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا. ان کا کہنا تھا آج تاریخی موقع ہے، یہ ایک امتحان کا موقع ہے جس سے قومی قیادت کو گزرنا ہے. ایم کیو ایم پاکستان نے متحدہ اپوزیشن کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امید کرتا ہوں کہ اس دفعہ وعدوں سے زیادہ ایسے ارادے اپنے پاس رکھیں، ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام آدمی تک پہنچنے میں ممکن بنائے جا سکے. متحدہ اپوزیشن کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا ہے. ہمارے معاہدے اور مطالبات کی ایک ایک شق عام لوگوں کے لیے ہیں، عوام کے لیے ہیں. وہ علاقے خصوصی توجہ کے مستحق ہیں. اللہ پاک ہمیں سرخرو کرے. ہم نے ذاتیات کے بجائے پاکستان کے مفادات کو ترجیح دی ہے، تہذیب کی زبان اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ماحول دے سکیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ پاک ہمیں سرخرو کرے. شہباز شریف کا اس موقع پر بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آج پاکستان کی تاریخ کا بہت اہم دن ہے. شاید دہائیوں میں متحدہ اپوزیشن کا قومی جرگہ مل بیٹھا ہے. اس یکجہتی کے لیے جتنی کوششیں کی گئی ہیں قابل ستائش ہیں. اس وقت گفتگو کے دوران اذان عصر ہو رہی تھی، لہٰذا انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے. ایم کیو ایم پاکستان نے بالآخر حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے. ایم کیو ایم پاکستان متحدہ اپوزیشن میں شامل ہو گئی ہے. خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ امید کرتا ہوں کہ اس دفعہ وعدوں سے زیادہ ایسے ارادے اپنے پاس رکھیں، ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام آدمی تک پہنچنے کو ممکن بنائے جا سکے. متحدہ اپوزیشن کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا ہے. ہمارے معاہدے اور مطالبات کی ایک ایک شق عام لوگوں کے لیے ہے، عوام کے لیے ہے. جب ہم سب اکٹھے ہوئے تو آخری لمحات پہ ایم کیو ایم کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بات بہت حد تک مکمل ہو چکی، ابھی ایک دو پوائنٹ وہ بھی حل ہو جائیں گے. ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ اس وقت سابق صدر آصف زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو نے دعوت دی ایم کیو ایم کو، خالد صدیقی صاحب کو، آئیے دوسرے کمرے میں بیٹھ کے ان کو بھی طے کر لیں. اور 20 منٹ کے اندر وہ معاملہ طے ہو گئے اور اس کے بعد اس معاہدے پر تمام اکابرین نے دستخط کیے. یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دراصل 22 کروڑ عوام کا مقدمہ ہے جو آج یہ متحدہ اپوزیشن اور ان کے ساتھ جس طرح باپ کے خالد مکی صاحب اور آج ایم کیو ایم نے اعلان کیا ہے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جمہور کا طریقہ یہ ہے اور ایک روایات یہ ہیں کہ پھر پرائم منسٹر چاہے وہ سلیکٹڈ کیوں نہ ہو، ان کو چاہیے کہ جب وہ ادبی قوت کھو بیٹھے ہیں پارلیمان میں، آج وہ استعفیٰ دے کر ایک نئی ریت قائم کریں اور روایت قائم کریں. مجھے امید ہے، ان سے امید تو نہیں لیکن ہوپنگ اگینسٹ ہوپ کہ اگر وہ اس کو کریں گے تو ایک نیا وہ ایک روایت قائم کریں گے. میں آخر میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہوں گا کہ آپ سب نے اس معاملے میں جتنی عارف ریزی کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ آپ نے کوششیں کی ہیں. یہ دراصل سندھ کی میران کی وادی میں بسنے والے لوگوں کے لیے، بلوچستان کے سنگلاب پہاڑوں میں بسنے والے لوگوں کے لیے، پنجاب کے میدان میں بسنے والے لوگوں کے لیے اور KPK کے برف پوش پہاڑوں میں بسنے والے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، ماؤں کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، ان کے مستقبل کو بچانے کے لیے، پاکستانی معاش کو مضبوط کرنے کے لیے، خارجی پالیسی کو مضبوط کرنے کے لیے اور پاکستان کو دراصل قائد کا پاکستان اس راہ پر چلانے کے لیے کیا ہے. میں آپ کا
اپنی طرف سے اور تمام قائدین کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ معاہدہ انشاءاللہ یہ اب قائم رہے گا اور اس کے اوپر منوان ان لیٹر اسپرٹ عمل ہوگا. آپ کو بہت شکریہ. معزز صحافی حضرات، میں درخواست کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان سربراہ چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب سے کہ وہ متحدہ اپوزیشن کی نیوز کانفرنس جاری اب ہے تو پی ٹی وی لگا اور ایم پاکستان نے حکومت سے علیحدگی اور متحدہ بسم اللہ اپوزیشن الرحمن کے ساتھ چلنے کا الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں ایم کیو ایم پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ جو فیصلہ ایم کیو ایم پاکستان نے کراچی کا مفاد کراچی کے مسائل دیکھتے ہوئے، ہمارا صوبہ کا مسائل دیکھتے ہوئے، ملک کا حالات دیکھتے ہوئے جو فیصلہ ایم کیو ایم پاکستان نے لیا ہے، حکومت کا علیحدگی کا اعلان کیا ہے اور یونائٹڈ اپوزیشن کا ساتھ دیا ہے، وہ یقیناً تاریخی فیصلہ ہے. اور میں آپ سب سے ایک بار پھر ریپیٹ کروں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے، جو آپس میں تعلق ہے، اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے ہمارا عدم اعتماد سے. پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے مل کے کام کرنا ہے ہر حال میں، ہر صورت میں. اگر ہم نے کراچی کا ترقی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے اپنی محنت کرنا ہے. اور میں میڈیا کے سامنے یہ بات آج رکھنا چاہوں گا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے جو ہمارا جو درمیان کانورسیشنز چل رہے ہیں وہ آج سے نہیں. اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اس بات کا تائید کر سکتے ہیں کہ میرا یہ خواہش تھا، بہت پہلے یہ خواہش تھا کہ سینٹ کے الیکشنز میں بھی یہ میرا خواہش تھا کہ اگر وہ وفاق میں عمران خان کے ساتھ، پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ اپنا ورکنگ ریلیشن شپ تھا، کولیشن تھا، تو سندھ میں اس وقت میرا یہ پیشکش تھی کہ ہم نے مل کے اگر کام کر سکتے ہیں تو وہ اتنا ہی بہتر ہے. اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم وہ سفر کا آغاز شروع کر سکتے ہیں جو 2018 کا الیکشن کے نام پہ سلیکشن ہوا. وہ پورا پاکستان کے خلاف سازش تھا. ہر ایک جماعت جو آپ کے سامنے آج اکٹھے ہوئے ہیں ہمارے خلاف سازش تھا. مگر جو نقصان کراچی کو ہوا اس سازش کی وجہ سے، جو دوری پیدا ہوا پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں اس سازش کی وجہ سے، اس کا نقصان تو پورا پاکستان اٹھا رہا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی شکل میں. مگر خاص طور پہ کراچی اس کا بوجھ، اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اب پوری قوم کی قیادت ایک پیج پہ ہے. ہم مل کے نہ صرف کراچی کی ترقی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے وہ قدم اٹھائیں گے جس سے ہم پاکستان کے عوام کو ان مسائل سے سکتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان اپنا اکثریت کھو چکا ہے. آج ایم کیو ایم پاکستان اپوزیشن کی صفوں میں شامل ہو گئے ہیں. کل اسلم بھوٹانی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوا. اس سے پہلے بلوچستان عوامی پارٹی
हमारे साथ शामिल हुआ, जमहूरी वतन पार्टी हमारे साथ शामिल हुआ, और अब वज़ीर आज़म साहब का अक्सरियत मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। मैं शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा सही और स्टेटमेंट स्पिरिट में चैलेंज दिया है वज़ीर आज़म साहब को कि वो इस्तीफ़ा दे। हम समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने इस वक्त तक, इस मौके तक इस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई है, मगर वज़ीर आज़म साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, वो वज़ीर आज़म नहीं रहा। या इस्तीफ़ा देना है या आप इतना देर नहीं भाग सकते हो। आए, पार्लियामान का सेशन कल ही है, कल ही वोटिंग रखते हैं और इस मामला को सेटल करते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं, साफ व शफाफ इंतखाबात के इस्लाहात पे अपना काम शुरू कर सकते हैं और पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र, जमहूरियत का बहाली का सफ़र, मुआशी बहरान से निकलने का सफ़र का आगाज़ हो सकता है। मैं एक बार फिर यहाँ बैठे सारी सियासी जमातों का शुक्रिया करता हूँ और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब जो जल्द ही इंशाअल्लाह ताला मुल्क का वज़ीर आज़म मुंतखब होगा, जिस तरीके से और जिस अंदाज से सारे जमातों ने पहले दिन से इसी मिशन पे काम किया है, मिल के मेहनत किया है, ये तारीख का हिस्सा बनेगा कि ये हुकूमत जो गैर जमहूरी तरीके से हम पे मुसल्लत किया गया, पाकिस्तान के सियासी जमातों, पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस ने जमहूरी हथियार अपना के पार्लियामान का सिस्टम में रह के और पार्लियामान को इस्तेमाल करके इसका खात्मा का बंदोबस्त किया है और इंशाअल्लाह ताला आगे पाकिस्तान की अवाम के लिए और मज़ीद खुशखबरी मिलेगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, जैसा कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हमारा ये मुआहदा ना सिर्फ इनसे बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और मुत्तहदा अपोजिशन से मशरूत नहीं था अदम एतमाद की तहरीक देने का। हमने जब कल मुआहदों पे को फाइनलाइज कर लिया है तो आज मैं इसका ऐलान कर रहा हूँ कि इस तब्दीली में हम आपके साथ होंगे और हम ये दुआ करते हैं कि ये तब्दीली पाकिस्तान के आम आवाम के लिए की ज़िंदगियों में भी तब्दीली लाए। अब मैं दरख्वास्त करूँगा जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान साहब से कि वो बात करें। चैनल्स को नहीं जाती आवाज़। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस एमकेएम पाकिस्तान के साथ इस वक्त जारी है। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने हुकूमत से अलहदगी और अपोजिशन के साथ जाने का फ़ैसला किया है। शहबाज शरीफ का ये कहना था कि वज़ीर आज़म अपनी अददी अक्सरियत खो चुके हैं और उन्हें अब इस्तीफ़ा देकर घर चले जाना चाहिए। जमहूर का तरीक़ा ये है और रिवायत भी ये है। वज़ीर आज़म अददी अक्सरियत खो चुके हैं, इस्तीफ़ा दें और अपनी रिवायत कायम रखें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी और एमकेएम का आपस में ताल्लुक़ है, इसका अदम एतमाद से कोई वास्ता नहीं है। एमकेएम ने कराची और सूबे और मुल्क के हालात देखते हुए जो फ़ैसला किया है वो तारीख़ी फ़ैसला है और एमकेएम और पीपल्स पार्टी को कराची की तरक्की के लिए मिलकर काम करना है। बिलावल भुट्टो का भी कहना था कि वज़ीर आज़म अपना एतमाद खो चुके हैं, वज़ीर आज़म की अक्सरियत मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है। वज़ीर आज़म जो है इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। इस वक्त पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को गुफ्तगू की दावत दी गई है।
اس وقت اذان کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان خاموش ہیں. جب اذان ختم ہوگی تو وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. یہاں ہم آپ کو بتائیں اس سے قبل بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ میری بہت خواہش تھی کہ اگر وفاق میں عمران خان کے ساتھ تھے تو سندھ میں میری خواہش تھی کہ MQM ہمارے ساتھ مل کر کام کرے, ہم اس سفر کا آغاز کر سکتے ہیں. عمران خان اپنی اکثریت کھو چکے ہیں. 2018 کا الیکشن ہمارے خلاف سازش تھی, کراچی میں ہمارا بہت نقصان ہوا اور کراچی اس کا بوجھ اٹھا رہا ہے. بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہم سب مل کر پاکستان کی ترقی کے لیے قدم اٹھائیں. صلی علی رسولہ الکریم. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا یہ فیصلہ کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک میں متحدہ اپوزیشن کا ساتھ دے گی, میں اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں اور پورا PDM اور پورا حزب اختلاف اس کا خیر مقدم کرتا ہے. یقیناً یہ فیصلہ نہ صرف کراچی, نہ صرف سندھ, بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک سیاسی یکجہتی کا اظہار ہے اور جس کے ثمرات پورے ملک کو اور پورے قوم کو پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز. 3.5 پونے 4 سال پہلے جس ڈرامے کا آغاز ہوا تھا اس کا ڈراپ سین ہو گیا ہے. چرب زبانی, نمائش اور جھوٹ پر مبنی سیاست کا آج خاتمہ ہو رہا ہے. اس لیے میں تمام جماعتوں کے کارکنوں اور عوام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ملک کو اس نحوست سے نجات دلانے کے لیے جو قربانیاں دیں, اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اپنی کامیاب جدوجہد کے نتائج پر. یقیناً ہم پاکستان میں ایک صحت مند سیاست کی بنیاد ڈالنا چاہتے ہیں. احترام پر مبنی اقدار کا احیاء چاہتے ہیں. ہمارے ملک کی سیاست میں یہ روایات, گھٹیا قسم کی روایات, ایک دوسرے کی بے توقیری کی سیاست, اس کی تذلیل و رسوائی کی سیاست, تمسخر کی سیاست, اس نے ہمارے معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اور جب معاشرہ اپنے قدرے کھو بیٹھتا ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ کولیپس کرتا ہے, اپنے وجود کا خاتمہ کر دیتا ہے. میں تو اپنے دوستوں کی اجازت سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جن دوستوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا, وقت ہے کہ وہ قومی دھارے میں شامل ہوں, حزب اختلاف کا ساتھ دیں. یقیناً ہمارے سامنے چیلنجز ہیں, جیسے میں نے عرض کیا, ایک صحت مند سیاست, احترام پر مبنی اقدار کا احیاء, معاشی, معاشرتی, سیاسی اور اقتصادی اصلاحات کی ضرورت ہے. اور یقیناً آج ہم جس یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اسی یکجہتی اور باہمی تعاون کی ضرورت ہوگی اگر ہم نے ملک کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. سنا ہے کہ وہ قوم سے خطاب کرے گا. اب سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہے, پانی پل کے نیچے سے بھی گزر چکا ہے, اور تیرے لیے
चाटने के लिए भी एक बूंद नहीं रह गया है। अगर आपके अंदर कुछ भी अखलाकियात का कुछ आपके अंदर है, आपको आज इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे पास इन सियासी जमातों के, जिसमें जनाब खालिद मकसूद साहब तशरीफ़ फरमा है, खालिद मकबूल साहब तशरीफ़ फरमा है, इन फैसलों के नतीजे में हमारी तादाद इस वक्त 175 की है, जबकि हमें ज़रूरत सिर्फ 172 की है। तो लिहाजा ये कहना कि मेरे खिलाफ आलमी साजिश हुई है, मैं बताना चाहता हूँ आलमी साजिश उस वक्त हुई थी जब इमरान खान को इक़्तिदार में लाया जा रहा था। मुल्क पर हुकूमत करने की मनसूबाबंदी आलमी सतह पर हुई थी और वही वो आलमी साजिश थी। अब जाहिर है कि मुल्क है, उससे तो चलना है, लेकिन हमने उस वक्त से जो मौक़िफ़ लिया, हम अपने मौक़िफ़ पर आखिर लम्हे तक कायम रहे हैं, पूरी इस्तिक़ामत के साथ अपने मौक़िफ़ को दोहराते रहे हैं और आलमी साजिश ही के तहत उसको मावराए कानून इक़दामात करके जमहूरियत की रूह को मसल दिया गया था। वो थी साजिश। अब कोई साजिश नहीं है। ड्रामे न मत बनाओ, खत आया है, फिर धमकियाँ दी हैं, किसी ने धमकी नहीं दी। आपकी हैसियत वो नहीं है कि जिसको अमेरिका या इस लेवल का कोई मुल्क आपको धमकियाँ दे। अपनी सियासत ख़राब करनी है, उन्होंने अपने आप को आपके लेवल पे लाना है। तुम हो क्या चीज़ कि आप इस किस्म की बातें करते हैं बड़े अपने आप को बड़ा बनाने के लिए। इस हवाले से अवाम ने जद्दोजहद के और कुर्बानियों के नतीजे में, कारकुनों ने अपनी कुर्बानियों के नतीजे में अपना जमहूरी, आईनी और कानूनी हक हासिल किया है और हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। और अब हमने आलमी एजेंडे को नाकाम बनाना है। आलमी एजेंडे की बात करना, ये हमने नाकाम बनाना है इंशाअल्लाह। हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत का तस्वुर रखते हैं और उसी की तरफ ये सारे पेशरफ्त हो रही है, जद्दोजहद हो रही है। हम एक कौम बनना चाहते हैं और हम आलमी दुनिया की सियासत में कौम की तकसीम के कायल नहीं हैं। एक पाकिस्तान, उस पाकिस्तान की तरक्की, उसका इस्तेहकाम, पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली, ये हमारा हदफ है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हदफ हम हासिल करके रहेंगे। जनाब खालिद मकबूल साहब, उनकी पूरी जमात, उनकी टीम, उन्होंने जो फ़ैसला किया है, एक बार फिर मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इन्हीं ख़यालात पर इत्तिफ़ाक़ करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलवी साहब के हज़रात, आज हमारे दरमियान बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल साहब भी मौजूद हैं और इनकी वजह से हमें हौसला हुआ है कि हम मिलकर, सर हमारी वजह से भी थोड़ा जी सा आपकी वजह से असल हमारी वजह से कि लाइन हमने लगाई। हम मिलकर लापता अफराद के लिए जद्दोजहद को कौमी जद्दोजहद में तब्दील करेंगे। मैं आप तमाम कायदीन की मौजूदगी में ये बात दोहराना चाहूँगा कि लापता तो किसी भी माशरे में हो सकते हैं, लेकिन लापता करने वाले किसी महज़ब माशरे का हिस्सा नहीं होते, किसी इस्लामी माशरे का हिस्सा नहीं होते। तो खुदा के लिए इसको अपना अहम तरीन नुक्ता बनाकर इस अजाब से पाकिस्तान को निजात दिलाइए। मैं चाहूँगा कि अख्तर मेंगल साहब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करें। अब आपकी बारी। सर आप लेट कर रहे हैं और बातें दिमाग में भूल गई सारी जो बनाई। हम लिखते नहीं है, अंदर ही बनाते हैं। हम उसी को बनाते हैं। सर आज टेढ़े सवाल ना करना। आज मैं बोलूँगा
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं MQM के साथियों को खुशामदीद भी कहूँगा और उनका शुक्रगुजार भी हूँ कि जिस मुज़ाकरात की ज़िम्मेदारी हमें दी गई थी उनको मेरे ख्याल में जितनी हमारी एफर्ट्स इतनी नहीं हुई है जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दोस्तों की इसमें और उनकी नेक नीयती की वजह से और उनकी अपनी ख्वाहिशात की वजह से आज हम इस मकाम पर पहुँचे हैं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM को बिलखुसूस मुबारकबाद देता हूँ। जब से ये मौजूदा हुकूमत बनी है और अपोजिशन का किरदार हम अदा करते रहे हैं और काफ़ी अरसे से हमने कोशिश की। आपको याद होगा गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये वाज़ेह कह दिया था कि जी वो ना क्लीन बोल्ड होंगे, ना कैच आउट होंगे, ना ही रन आउट होंगे, वो हिट विकेट होंगे और उसके अपना ही बल्ला जो है उसकी विकेटों में लग चुका है अभी। अब ऐसे मौके पर जब वो मुकम्मल अक्सरियत खो चुके हैं, खान साहब आपका शायद खेल के मैदान में इतना तजुर्बा हो लेकिन आपके उस तजुर्बे से ज़्यादा हमारा जो है सियासत का तजुर्बा कई गुना ज़्यादा है। बहैसियत एक आपके पुराने इत्यादी के सियासत के उस दायरे में रहते हुए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जब आप अक्सरियत खो चुके हैं तो उस सियासत और अखलाकियत की बदौलत आप जो है मुस्तीफ़ा हो जाएं। अब ये बैनुल-अक़वामी साजिशों का जो चूरन है वो बहुत पुराना हो गया भाई। ये तो बैनुल-अक़वामी साजिशें जो है 1947 से चली आ रही हैं, कभी किस पर कभी किस पर, कभी कोई किस मुल्क का एजेंट था, कभी कोई किस मुल्क का एजेंट है। अब ये चूरन बिकने वाला नहीं है, कोई नया चूरन देखें, कोई नई दुकान खोलें। जिस तरह के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि कुछ मसाइल ऐसे हैं जो हम सब के, न कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों के बल्कि इस मुल्क में रहने वाले अवाम के कदर मुश्तरका हैं और इस मुल्क में बसने वाले हम चाहे किस सूबे से भी ताल्लुक़ रखते हों, किसी रंग, किसी नस्ल, किसी ज़बान से भी हमारा ताल्लुक़ हो, हैं तो हम इंसान। उस इंसानी हुकूक की जो पामाली की जा रही है गुज़िश्ता 30 सालों से, उसकी रोकथाम होनी चाहिए। हम ये नहीं चाहते जिस तरह पहले ये जो हुकूमत आ रही थी कि हम नया पाकिस्तान, नहीं हमें नया पाकिस्तान चाहिए, नहीं हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए। हमें एक मुख्तलिफ पाकिस्तान चाहिए जिसमें हमें जीने का हक हो। हमें वो पाकिस्तान चाहिए जिसमें हर सूबे को उसके वसाइल पर, उसके साइल पर और उसके माली दौलत पर जो है उसका इख्तियार हो। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जहां पर हम एक इंसान के तौर पर हमें ट्रीट किया जाए। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जहां पर मेरे बच्चे जो हैं लापता ना हो। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जहां पर हमारे माँ वालिदैन रो रो कर आंखों से जो है वो नाबीना हो जाएं। फिर उस पाकिस्तान का फ़ायदा क्या जहां पर हमारे वालिदैन अपनी उस आंखों से उस पाकिस्तान को देख ना सकें। तो आखिर में मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का और बिलखुसूस MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मशकूर हूँ। और आइंदा क्योंकि आने वाले दिन जो है हमारे लिए कठिन है, ये तो मरहला हम लोग तय पा जाएंगे। एक इमारत को ज़मीन बोस करना
बहुत आसान है, लेकिन ज़मीन से उस इमारत को उठाना फिर वो बहुत मुश्किल मराइल हैं। उसके लिए हमें सफ़े बंदी करनी होगी। बड़ी नवाज़िश आपकी। मोहन साफी हजरात, गुफ्तगू इस नहज पे पहुंच गई कि हम सब समझते हैं कि पाकिस्तान को मुत्तहिद रखना, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए पाकिस्तान के एक एक पाकिस्तानी को, चाहे वो बलूचिस्तान में बसता हो, सिंध में बसता हो, खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हो या पंजाब का हिस्सा हो, जब तक सबको बराबर का वफादार और बराबर का हकदार नहीं समझा जाएगा, पाकिस्तान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। और मैं दावत खिताब देना चाह रहा हूँ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह जनाब खालिद बख्शी साहब को, पार्लिमानी लीडर। ये काम कर रहा है सर, देखे उठते साथ ही बिस्मिल्लाह सर, पानी के बगैर भी काम नहीं चलता भाई सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ी खुशी हुई है कि हम सारे इकट्ठे बैठे हैं और एक नया सफ़र है ये जो जोड़ हुआ है, जो किसी ज़माने में आपस में ये दुश्मन थे और आज ये दोस्त बन गए हैं। और जोड़ना अल्लाह को पसंद है और इंशाअल्लाह अगर ये जोड़ हुआ तो उसमें बरकतें आएंगी और अल्लाह इन सब लीडरान को तौफीक देगा कि अवाम की खिदमत करें। पाकिस्तान अवाम का है, आम आदमी का है और इसको वैसा ही बनाना चाहिए, न नया न पुराना, अवामी पाकिस्तान। और उसमें हर इंसान का, एक भीख मांगने वाले से लेके जो एक साहिब हैसियत है उसका ख्याल रखना चाहिए और उनको बेहतर ज़िंदगी देनी चाहिए। ये तो एक हमारे पे फ़र्ज़ है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं ज़रा शेयर करना चाहता हूँ कि एक रात को कल बहुत बड़ा मुआहिदा हुआ है जो मैं, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल साहब और हमारे शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, हमारे मेंगल साहब, सरदार अख्तर मेंगल साहब और जितने साथी इसमें शरीक थे, और मुझ ना चीज़ को भी आखिर में डाल दिया। मुझे बड़ा फ़ख्र था कि मैं भी उसका हिस्सा बन गया हूँ। वो एक मुआहिदा क्या हुआ है कि जो मेहरबानी नहीं की गई MQM के ऊपर, ये उनका हक था। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि पीपल्स पार्टी ने ये एहसास किया कि हम सिंध में रहने वाले सारे बराबर हैं, चाहे वो सिंधी हो, सराइकी स्पीकिंग हो, बलोच हो, पठान हो, जो मौजूद है वहाँ पे, और हमारे उर्दू स्पीकिंग। और ये किसी भी सूरत में सिंध तरक्की ना करता अगर इन सब को ऑन बोर्ड ना लिया जाता। या आप अगर 1000 साल भी हुकूमत करते मगर ये कोई नतीजा ना निकलता जो अब नतीजा निकलेगा। और मेरे सिंध के सारे भाइयों को कुछ जमातें महसूस कर रही हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने सिंध का हक मार के MQM को दिया है, ये गलत सोच है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि तादाद के हिसाब से अगर देखा जाए, शहरी आबादी के हिसाब से देखी जाए, अगर उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा तो ये सिंध बर्बादी की तरफ जाएगा, सिंध आबादी की तरफ नहीं जाएगा। मैं बार बार इनको मुबारक दूंगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसका नतीजा फ़ौरन आ जाएगा और ये मेरे जो भाई हैं मुत्तहिदा कौम के वापस जाके इनको, इनके अवाम से भी मुबारक मिलेगी। मैं सारे साथियों को मुबारक देता हूँ कि उन्होंने सफ़र किया है। और मैं जो 3.5 साल गुजर गए उस पर कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो सफ़र गुजारे, मुनासिब नहीं है कि मैं उनको कुछ कहूँ। अल्लाह उनको हिदायत दे, इस तजुर्बे से वो समझ जाएं और सीधा रास्ता करें। शुक्रिया जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मोदी साहब के हजरात, आप सब यहाँ आए और हम एक नतीजे में पहुँचे हैं। आपने देख लिया पिछले असेंबली में हमारी 26 नशिस्तें थी, मनसूबाबंदी के जरिए 7 कर दी गई। हमने उस वक्त भी कहा था कि अगर आपने हमें गिना सही तरह नहीं तो तोड़ना पड़ेगा। 7 के बगैर ना हुकूमत बन सकती थी,
ना साथ के बगैर हुकूमत जा सकती। अल्लाह का शुक्र है। एक मिनट जी, अनाउंसमेंट है जी, एक सेकंड। एक अनाउंसमेंट है, अग्री में आमिर खान सवाल नहीं है अभी, सवाल नहीं है, अनाउंसमेंट है। एक छोटी सी दरख्वास्त है। अभी कल पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ और तमाम दोस्तों के साथ एक मुआहदा साइन हमने किया था, तो उसकी साइन होने हैं, तो बेचारे थे कि सबके सामने हो गए, तो साइन के लिए अच्छा अभी साहब नहीं वो नाम टेप करके उनके सामने दे सकते हैं। अच्छा तरतीब हो जाएगी। अभी बिखरी हुई दोस्तों। हाँ वो सारे फोटोग्राफर्स हजरात से गुजारिश है कि प्लीज बैठ के पिक्चर बना लें, मेहरबानी, क्योंकि कैमरे में लाइव जा रहा है। ये जेन्युइन मुआहदा प्यास है, लगी है फेक लेटर नहीं यार है। इसने फोटोग्राफर्स प्लीज नीचे बैठ जाएं। और मुआहदा आप सबको व्हाट्सएप पे अभी शेयर कर दिया जाएगा, तो सबके पास ये कॉपी साइंड मौजूद होगी। और जो फोटोग्राफर्स हजरात हैं प्लीज लाइव कैमरा से साइड पे तस्वीर खींच लें। आपकी बहुत मेहरबानी। असल में अगर बात करेंगे, ये ले हाँ दबाएं, ये ले आप नीचे करें वकार सकी साहब। आज अगर बटन दबाएं। हाँ मैं गुजारिश करूँगा तमाम सहाफ़ी हज़रात से, क्योंकि हमारे एक अगली मीटिंग का भी टाइम हो गया है, मैं गुजारिश करता हूँ और रात देर तक तो सवालात यही होते रहे, और आज उन तमाम सवालात का अभी आपको जवाब मिल गया है सारी चीज़ से। जरूरी है मौलाना साहब। देखिए मेरी गुजारिश सुने, सैयद साहब मैं प्लीज गुजारिश करूँ, बारी बारी मैं एक गुजारिश मेहरबानी। ऐसे नहीं करना पड़ता प्लीज। जिस मसले पर किसी फोरम ने कोई बात तय और न की किसने हो, करना है इधर? और आप आज एक सवाल कर लें, मैं कुछ जवाब देना चाहूँगा, दूसरा कुछ जवाब देना चाहेगा। आप यही चाहते हैं कि एक किसी तरह की वाला नहीं है मौलाना साहब, फिक्र ना करें। आपको आजादी से आप उसमें पसंदे के लिए निकालते 2-3 सवाल अगर बारी बारी की ऐसे सदीक साजिद साहब जी, सदीक साजिद साहब को माइक दे दें। सदीक साजिद साहब को माइक दे दीजिए। सदीक साजिद साहब मेहरबानी जी। सवाल मेरे साथ आपसे है, इस तरह के चैलेंजेस हैं और आप क्या जब हुकूमत में आएंगे तो सबसे पहले आपका क्या काम होगा? कोई आवाम को रिलीफ देंगे? वही जो हम साइन कर रहे हैं। साथ ही कौमी हुकूमत की आपने बात की थी कि उसमें भी जी बिल्कुल। देखें ये सारा जो इस वक्त आपको इत्तेहाद और इत्तेफाक नजर आ रहा है, इसके सामने सिर्फ एक मकसद इसके सामने है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की बेहतरी, खुशहाली और तरक्की, कैमरों के सामने और उसके लिए जो कुछ भी हम से बन पड़ा, लड़ाई मत करना भाई आप। के गरीब आदमी और आम आदमी की हालत को मजीद तबाही से बचाने के लिए हर कदम उठाएंगे। दूसरी बात यह है, नहीं वो नहीं करेंगे, इंतकाम हमारी डिक्शनरी में लफ्ज नहीं है नहीं है। आप नोट कर लें। बिल्कुल नहीं हम उसका दूसरी बात, नहीं आपके समझ जो सवाल के जवाब में वो ये दे रहा हूँ कि हम सब मिलकर मुशावरत के साथ छोटे सूबों की जो हकूक के लिए कुछ तो डाल देना था। बात की सरदार साहब ने और मुफ्ती साहब ने, मिलकर हम उनके लिए बात करेंगे, इकदाम उठाएंगे और छोटे सूबों की बहाली के लिए, मिसाल के और बलूचिस्तान जो है उसकी तरक्की और खुशहाली के लिए जो भी इकदाम ये हुकूमत करेगी इंशाल्लाह, इसी माशाल्लाह तरीके से जो सिंध के हवाले से सिंध की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, वहाँ पर जो कुछ भी वफाक के साथ हम मिलकर कर सकते हैं करेंगे। कराची के लिए पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, एमक्यू के साथ मिलकर वफाक
वफाक पीछे होगा, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम आगे होगी। हम मिलकर हम इस मुल्क के मसाइल हल करेंगे, ताकि आप यकीन कर लें कि छोटे सूबे जब तक बड़े सूबे के हम पल्ला नहीं होंगे, पाकिस्तान का मकसद जो है वो पूरा नहीं होगा। ऐसे नहीं खालिद महमूद साहब सवाल करें जी। मियां साहब हुकूमत सोच रही है कि कल इन कैमरा इजलास बुलाया जाए कौमी असेंबली का, खालिद महमूद साहब आपके सामने रखा जाए, तो क्या आप इस इजलास में हिस्सा लेंगे? हरकत होती है, इमरजेंसी लगाने की कोशिश होती है, या पंजाब में गवर्नर राज लाने की कोशिश होती है, तो इसमें आपका क्या मौक़िफ़ होगा जी? ये हम मिलकर गैर कानूनी गैर आईनी हरकत की गई जिसका कोई जवाब नहीं है, हम मिलकर इंशाअल्लाह मशावरत के साथ इसका डट के मुकाबला करेंगे। मियां साहब जी, एक मिनट मियां साहब क्यों? शहबाज साहब ये बताइएगा, चेयरमैन साहब आपसे मेरा सवाल है, मुझे ये बताइएगा, चेयरमैन साहब मुझे ये बताइएगा कि कितने अरसे के लिए शहबाज साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और क्या इलेक्शन जो है वो अर्ली करवाए जाएंगे? मेरा सवाल ये है चेयरमैन साहब से कि कितने अरसे तक शहबाज साहब जो है वो वज़ीर आज़म रहेंगे और क्या जल्द इलेक्शन करवाए जाएंगे? ये सब जॉइंट अपोजिशन के और हमारे नए इत्तेहादियों के फैसले हैं जो हम मिल के लें। मियां साहब मेरा आपसे सवाल ये है कि हमने 2006 में देखा था जब तमाम सियासी कुव्वतें इकट्ठी हुई थी लंदन में, बेनज़ीर साहब भी थी, नवाज शरीफ साहब भी थे, मौलाना भी थे, और एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, उस पर अमल नहीं हुआ जिसका नतीजा हम सब लोगों ने देख लिया। क्या आपकी जो सारी सियासी क़यादत है, बिलावल हैं, आप हैं, मौलाना हैं, बलोचिस्तान की जमातें हैं, को रिव्यू करना चाहेंगे आपने जो सियासी गलतियां की हैं और दोबारा चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी को साइन कर सके और इस वक्त इंतखाबात करवाएंगे? जी देखें मियां साहब, उसका सारा क्रेडिट मरहूम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जाता है, जिन्होंने माजी को भुलाकर एक नया चार्टर साइन किया, जिसको आज भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पर याद किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि आज यहाँ पर सारे अकाबरीन बैठे हैं, ये उसी का तसलसल है। अगर कहीं किसी वजह से बीच में गैप आया है तो ये दुनिया असर हाजिर की तारीख ये गवाह है कि इस तरह के तातुल आ जाया करते हैं। आज उसका ये तसलसल है और एक बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है। ये एक अनाउंसमेंट है, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि एक मुआहदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और कौमी मुत्तहिदा पार्टी के दरमियान एहसन इकबाल साहब जो हैं वो और आपकी आमिर खान साहब और आमिर खान साहब के जो सिग्नेचर्स हैं इसके ऊपर दोनों पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इस वक्त साइन कर रहे हैं। चार्टर ऑफ राइट्स के नाम से ये अग्रीमेंट है, ये इस वक्त साइन हो रहा है। सवाल करवा लें आगे जी। एनी साहिबा सवाल करें जी। अच्छा ये मैडम हमारे पास हेलो, हम भी इधर खड़े हैं मैम हम भी इधर खड़े हैं। मियां साहब अली वजीर जो कि 16-17 माह से जेल में है, मुत्तहिदा अपोजिशन उसके लिए क्या किरदार अदा करेगी? आप किसी जिससे हम सवाल मरीम आप सवाल अदम एतमाद के खिलाफ वजीर आजम के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के भी बातें सुनाई दी जा रही हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? और इसके बाद चेयरमैन सेनेट का क्या रोल होगा इस सारे सिनारियों में, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लेने जा रहे हैं जॉइंट ऑपोजिशन के हैं? इस वक्त हम वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पे फोकस है। जी सती साहब, मियां साहब बहुत शुक्रिया। मियां साहब अली वजीर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि यार भाईजान ऐसे नहीं होता, वकार सदी साहब सवाल कर रहे हैं, उनका प्रोडक्शन और कर दिया भाईजान, कर दिया। चेयरमैन बिलावल साहब, 26 जुलाई 2018 से आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं वो एक ही स्लोगन लगाया करते थे, वो एक ही बात किया करते थे कि हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि जो अदारे हैं, हाँ वो सिविल अदारे हैं या मिलिट्री अदारे, वो अपनी हुदूद में रह के काम करें। आज क्या आप ये यकीन दहानी कौम को सब करा सकते हैं कि इस वक्त अदारे न्यूट्रल हैं और अपनी आईनी हुदूद के अंदर रहकर काम कर रहे हैं और आइंदा भी ऐसे करेंगे?
मुझसे ये शहबाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला हमारा इस जिद्दोजहद के नतीजे में हम इस सिचुएशन में पहुंचे हैं जो आज आपके सामने सारे पार्टीज बैठे हैं और हमारा जो ये मेहनत है, हमारा ये जो सोच है, हमारा ये जो जिद्दोजहद है वो एक दिन का नहीं है। ये 3 नस्लों से मेरा जमात ये जिद्दोजहद लड़ रहे हैं और आगे भी हम इस जिद्दोजहद को के लिए मियां साहब अगर अंपायर लीव करें वजीर क्या किरदार अदा करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। हमने मुत्तहिदा अपोजिशन और MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। अख्तर मेंगल गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि आप अक्सरियत खो चुके हैं, अखलाकियात और सियासी बुनियाद पर इस्तीफा दें। जिस मुज़ाकरात की जिम्मेदारी दी गई थी पीपल्स पार्टी और MKM की नेक नियति की वजह से इस नतीजे पर पहुंचे हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन और MKM रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। शहबाज शरीफ का कहना था कि इंतकाम का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं है, छोटे सूबों की तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दामात करेंगे। कराची में पीपल्स पार्टी और MKM के साथ मिलकर मसाइल को हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मजबूत करने पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद है ये मुआहिदा कायम रहेगा और इस पर मनोअन अमल होगा। ये गैर जमहूरी हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई। इसके अलावा अख्तर मेंगल का कहना था कि बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली हो रही थी, उसको रोकना चाहिए।